hope you've been having a good morning. So let's get started with what we're here to do. And that is, we're here to meet the entire cast of Bahubali. ये कहानी दोस्ती की, ये कहानी प्यार की, ये कहानी किस्मतों के इश्क की तकरार से, जो फरिश्तों से हुई हो, पाक है उस भूल से, इसमें दर्द की खुशबू है, ये कहानी फूल से। आदाब, हम रज़िया, भोपाल की बहू बेगम, आज आप सबको हमारी नवाबी परिवार से मिलवाना चाहते हैं। तो आइए, ये है हमारे लख्ते जिगर अजान अख्तर मिर्ज़ा। दादा बैठ जाओ, दादा बैठ जाओ। और ये है उनकी मोहब्बत शायरा। और ये इनकी बचपन की दोस्त और हमारी बेगम महल की रौनक नूर। इनकी अम्मी और हमारे सबसे अजीज दोस्त यास्मीन। ये वो है जो हम सबका ख्याल अपनी जान से ज्यादा रखती हैं। हमारे शौहर के छोटे भाई असगर और उनके बेटे खालिद। Well, that's everyone. अब हम आपसे मिलेंगे डायरेक्टली प्रेस मीट पर उससे पहले आई थिंक प्रतीक, यू वांना शेयर समथिंग विद आवर फ्रेंड्स? यस, डेफिनेटली। सबसे पहले आदाब अर्ज़ है, शो का जो माहौल है उसके हिसाब से मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में। फ्यू थिंग्स दैट नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस बिफोर वी गेट ऑन टू द शो। जब हम लोगों ने बहू बेगम की शुरुआत की थी, दो नाम थे, एक्चुअली तीन नाम थे जो सबसे पहले लिखे गए थे। नाम था अजान। अजान के लिए सबसे पहला नाम जो अजान के सामने लिखा गया था वो था अर्जित तनेजा। लाइक फ्रॉम द डे वी डिसाइडेड द कॉन्सेप्ट, अर्जित वाज देयर, देन समीक्षा और मैं पिछले 3 सालों से ट्राई कर रहे हैं साथ में काम करने के लिए, बट वी डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी, बट देन हियर वी गॉट इट। एंड द मोस्ट कोइंसिडेंटल, आई कैन कॉल इट अ गुड कोइंसिडेंस इन फैक्ट, रज़िया के लिए बहुत सारे नामों के ऊपर चर्चा हो रही थी and I happened to speak to ma'am and it was in exactly 3 minutes that she agreed to play Rज़िया. So thank you so much ma'am for agreeing to do that. Then we had a very important casting for our show, which is the soul of the show, which is Rज़िya's counterpart and the most lovable character, that is Supriya ma'am. And again with Supriya ma'am, एक बार की conversation में we had her with us on the show, and a friend for 9 years now. I can call it a friend for 9 years. We did our show together. He was the main guy in our show. He had been holding the show for almost good 9 years, and we had a good run. And when I approached him for this character, he was readily there. Then for Khalid, we were looking for a guy who should not look evil, who should be good looking, who should have a charm of his own, and yet an amount of innocence on his face. For that, we had Rehan. Thank you so much, Rehan. You're missing The most important one, I'll tell you. I'm not missing that. So, while we had all our characters in mind, there was this one casting which was extremely critical. Okay, the one which should have class and which should have a lot of elegance. And then we did audition around 80 girls. Okay, we did audition around 80 girls for that character, and then finally we had our Shaina. Shaina, thank you so much. And all our dates were being changed because We were all waiting indefinitely to find our Shaira, Yes. and you can see why. This one was definitely worth the wait. Thank you so much. Thank God bless. after 80 auditions, we found her, and my leading lady, the lady who
designs all my show, she came running to me, Icha over there, and she said, "We have found our Shaira." So Icha and Prateek, my director. So my director is also Prateek. Both of them were 100% sure when we checked her out. Then we took her to Swati and Monica, and both of them and Sakshi over there, they were 100% convinced that this is our Shaira. So since we have such a beautiful cast, it becomes very important to have a great concept in place, and that's where Bahu Begum comes in action. दो निकाह. जब भी दो निकाह की बात आती है, सबसे पहला ख्याल जो आपके जहन में आता है वो होता है कि किसी एक मर्द ने अपने हक का गलत इस्तेमाल किया है. बट बहू बेगम में एक मर्द ने अपने हक का गलत इस्तेमाल नहीं किया है. एक मर्द ने अपनी मोहब्बत और अपनी दोस्ती को निभाने के लिए अपने हक का इस्तेमाल किया. 3 जिंदगियां एक निकाह की डोर से बंधी हैं. दैट इज व्हाट इज बहू बेगम. एक ऐसी माँ जिसने अपने बेटे को ऐसी परवरिश दी है, जो कि रजिया हैं, उन्होंने अपने बेटे को ऐसी परवरिश दी है कि वो एक औरत के साथ कभी गलत नहीं कर सकता है. फिर क्यों उसने दो निकाह किए? फिर क्यों उसने अपनी दोस्त और अपने प्यार दोनों का हाथ थामा है? ये जानने के लिए आपको बहू बेगम देखना होगा. और उसके लिए सबसे पहले आई विल क्यू इनटू द AV. प्लीज हैव अ लुक, एंड इट्स अ लेबर ऑफ आवर हार्ड वर्क, आवर लव. प्लीज हैव अ लुक एट इट. They're rather a good-looking bunch. Prateek, would you like to tell them where we're going next? So, these are the beautiful people who are going to live those characters for us on screen, led by, obviously, Simone ma'am, Supriya ma'am, Nazim, Rehan, and all these three, Azan, Arjit, Samiksha, and Diana. But there is a team that puts a lot of efforts to put this entire thing out there for you guys. I would like to introduce them to you. My writing partner, a friend who conceives the ideas with me, and that is Shilpa over there. Shilpa. Come guys, come. So the idea has been conceived by Shilpa and me together, and that is what ultimately Bahu Begum was made into. जो खूबसूरत फ्रेम्स आप देख रहे हैं, जो खूबसूरत लिबास आप देख रहे हैं, वो सब बनाने का काम उन्हें किस तरह से कंसीव किया गया है, किस तरह की सोच उसमें डाली गई है, क्योंकि एक नवाबी कल्चर को हम टच कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से स्क्रीन पे लाने का काम मैंने कुछ नहीं किया है. दैट इज डन बाय दीज 3 people who have made actually 4. The 4th one is not here, but the 3 of them are here, जिन्होंने उसे इतनी खूबसूरती से दिखाया है. इच्छा, who is the production designer and creative director. And you know, when you watch the show, you will see just what he means, because our sets are beautiful. I have to say, having worked in this industry for these many years, I've seen a lot of impressive sets. But what Icha has done with this one is really astounding. Thank you. बहुत अच्छा सेट, बहुत अच्छे कपड़े, बट अगर उन्हें खूबसूरती से नहीं दिखाया जा सके तो सब बेकार हो गए. उस खूबसूरती से दिखाने का काम किया है मंगेश दादा ने. Who's our DOP, our cinematographer. अच्छी कहानी को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, और हर एक छोटे छोटे नुआंस, हर एक छोटी छोटी डिटेलिंग को, बारीकियों को, परफॉर्मेंसेस में जो एक अपनापन हो, जब आपको बुरा लगे, आपको अच्छा लगे, वो हर इमोशन को पूरी सच्चाई, पूरी शिद्दत के साथ स्क्रीन पे लाने का काम किया है प्रतीक ने. प्रतीक शाह,
everything right to ensure what we have conceived is presented the way we wanted to do it. That work is done by Parth, the associate producer. He has handled the entire project. आप एक बहुत अच्छा शो बना सकते हैं, पर उसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो आपके साथ में होना चाहिए. You need a good partnership, and that partnership, that brilliant partnership with Colors has been led by Swati for us. Swati, thank you so much. Swati ki team, Monica, who has been a part of the show from the day one when we started work. Sakshi is there, Naveen is there. This is the team that has created the show alongside with us, and they have been true partners to provide us, to facilitate us with whatever we needed. I would also like to mention two special names. Though they are not here, but the idea was presented to Sonal and Anand, and they immediately grabbed onto the idea. Then we took it to Manisha ma'am, and they all were very confident about this show. It's not a regular show. It's not a show जहाँ पे कि आपको kitchen politics देखने को मिलेगा. There is a lot of soul in it, and we promise you that we will stay true to it. Thank you so much. We'll be going ahead with the photo opportunity, so I request all the artists to please stand behind the photo frame. And Prateek also. Everyone together. पीछे सर कौन है यार उधर खड़ा हो गया अरे हाथ दादा हाथ नीचे करो यहीं पे एकदम दिखलाना है अरे दादा बन रहा है अरे हाथ करो ना नीचे यार दादा दादा
में यार। अब लुक हियर। जी ये एक नवाबी फैमिली का स्टोरी है। बहू बेगम जो कि सिमोन मैम है एंड उनकी फैमिली की पूरी कहानी है। इट्स एक्चुअली लव ट्रायंगल। कैसे एक लड़का, उसकी दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड एक शादी में जुड़ जाते हैं, कैसे जुड़ जाते हैं वो आप लोग देखना, बट इट्स ऑल वेरी सर्कमस्टेंशियल and yeah, I hope you guys like it. We have a beautiful cast, a beautiful story and some beautiful girls, so please watch it. Okay, so फिल्म की अगर इस Serial. शो की बात करें, इसका नाम जो है बहुत यूनिक है, बहू और बेगम। तो क्या ये एक मॉम की चॉइस, एक आपकी चॉइस वाला? नो, इट्स बहू बेगम। बहू बेगम एक ही इंसान है जो सिमोन जी हैं, जो भोपाल की बहू बेगम, रानियों को जो कहा जाता है इन आई थिंक मुस्लिम्स, इस कास्ट में, इस रिलीजन में दे कॉल इट बहू बेगम। सो दैट्स फिल्म भी है अगर रज़िया, सो वो प्ले करेंगी हमारी सिमोन मैम। सो इट्स ऑन हर एंड इट विल बी बहू बेगम बाय, बिकॉज आफ्टर हर इट विल बी पास्ड ऑन टू जो भी हैं, जो आगे आप स्टोरी में देखने जाएंगे। सो कौन बनेगी बहू बेगम इज़ द होल कॉन्सेप्ट। जी मेरे किरदार का नाम अजान है। वो भोपाल के होने वाले नवाब हैं एंड अपनी अम्मी के लाडले हैं और अच्छे इंसान हैं। बहुत ही कभी भी गुस्सा आ जाता है उनको। एक वायलेंट स्ट्रीक है, बट लंदन से पढ़ के आए हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं। ये उनकी बेस्ट फ्रेंड है बचपन से। तो एक बहुत ही रॉयल फैमिली है एंड किरदार कैसे आगे चेंज हो जाता है, थोड़ा फंस जाता है, वो आप लोग देखना। जी नहीं, एक्चुअली मेरा उस पर कुछ वो नहीं है, बट इस शो उसके बारे में नहीं है, सो आई थिंक वी शुड स्टिक टू दिस। ओके, सिंस नवाबी फैमिली बताने वाले हैं तो ऑब्वियसली लैंग्वेज पर भी बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी आप लोगों को, उर्दू लैंग्वेज की पकड़। नॉट टू मच यार, बिकॉज कंटेम्प्रेरी सीरियल इतना ज़्यादा हम लोग कोड में नहीं जा रहे हैं। हम उसको एक फैशनेबल स्टेट पे कंटेम्प्रेरी रखते हुए हम आज का दौर दिखा रहे हैं, तो हम उस चीज़ को लेके लाइक हाउ शाहरुख, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा, हाउ शाहरुख खान जब नवाब केतरी जी भी आ जाते हैं, तो केतरी जी में वो हिंदू था, तो बट जस्ट सेइंग दैट हमें ऐसा लगता है दैट अगर मुस्लिम शो है तो एकदम कट्टर लैंग्वेज होनी चाहिए, बट वो भी होता है, वो साइड रहता है, बट आई थिंक आजकल आई हैव सो मेनी मुस्लिम फ्रेंड्स और एक्टर्स ऑल्सो यार, जो भोपाल लखनऊ से भी आए हुए हैं, बट दे डोंट टॉक इन एक आपको उसका एक वो मिलेगा, फ्लेवर रहेगा, फ्लेवर तो रहेगा, एंड उनकी जितने भी फेस्टिवल्स होंगे या द वे दे ड्रेस अप, वो थोड़ा सा आप देखेंगे रिफ्लेक्ट तो करेगा डेफिनेटली। बहुत अच्छे होते हैं, मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ओके, एपिसोड शूट्स हुए हैं, कितना मजा किया आपने? आई थिंक एक क्रेडिट सबसे ऊपर जाना चाहिए हमारे डायरेक्टर को। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर मिस्टर प्रतीक शाह। He is a confident man. He's a very cool guy, and actually ये पूरी टीम बहुत अच्छी है, क्योंकि सारी यंग लोगों की टीम है. No offense to anybody, but our producer, director, from our creative director, everyone's it's a young team, so it's fun on set and good vibes. Everyone is really nice, so we are enjoying the shoot so far. जी मैं अगर आपको बताऊं तो अजान थोड़ा अलग है मुझसे, क्योंकि
उसको बस गुस्सा आ जाता है, वो तो शायद नहीं ये तो वही है वो मैं शायद थोड़ा मिला सकता That's हूँ, Arjit. बट वो भी मैं ऐसे गुस्सा होता हूँ और ऐसे ठंडा भी हो हाँ, जाता so हूँ, बट that's a different thing. But I think I can't relate to him in that much of zone also because काफ़ी अलग है मुझसे personally. मुझसे पूछेंगे और नवाब है और I wish I could be like Azan. आप मुझसे पूछेंगे, उसका जवाब ही देंगे. नूर ये नूर ही है, ये पहले दिन से नूर ही है. समीक्षा इज नूर. Period. I think completely. I don't have to act, and I the think that's the fun most part difficult part is for- it's very difficult, but fun because it's challenging because I have to have so many colors in me in every scene कि वो एक जैसा एक होता And है in your कि clothes also. Sorry, bad joke. एक जैसा एग्जैक्टली वो वीडियो रिकॉर्ड के लिए आ रही है. सो एक जैसा जो आप लहजे में बात करते हैं तो वो एक रूटीन बन जाता है, वेयर एज नूर डजंट हैव अ रूटीन. शी विल ऑलवेज हैव अ डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट टेम्पो. एंड मैं बात कर रही हूँ, एक मिनट सुन ले. नहीं मैं उसको बोल. नहीं तो फिर ऐसा टेम्पो रहेगा एंड इट्स गोना बी फन बिकॉज आई कैन डू व्हाटएवर द आई वांट टू डू. Hell you want to do. अच्छी एक बुरी चीज़ बता दो दोनों एक दूसरे की. सब अच्छा है यार अभी. मैं तो बहुत अच्छी हूँ. इसका ये है कि बहुत गुस्सा हो जाता है फिर शांत हो जाता है, तो ही इज जस्ट लाइक नहीं बुरी चीज़ नहीं. नहीं बतानी, बता दे. फैंस को ये कहना चाहेंगे यार, प्लीज़ 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 ये शो देखिए. आप लोगों ने यू गिवन अस सो मच लव, सो मच respect and so much admiration. Please, this is a new show. It's a new beginning for both of us. So I really hope you guys like it and watch it. 15 July, 9:30 p.m. Monday to Friday on Colors. And anytime on Woot. Wow. Thank you. ओके सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन नए शो के लिए, जिसका नाम है बहू बेगम. बताइए कुछ इसके बारे में, किस तरीके की नजर आएगी सर? ये स्टोरी एक रॉयल फैमिली की, भोपाल की, जिसका नाम है बहू बेगम, है ना. और इस स्टोरी में 3 लोग हैं, मेजर जो लोग हैं उनका नाम है अजान, नूर और शायरा. सो ये दोस्ती, मोहब्बत और प्यार की स्टोरी है. बेसिकली दोस्ती और मोहब्बत की स्टोरी है. वो कैसे बनती है, कैसे टूटती है, उसमें मेरा कितना हाथ होता है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा. वो डिफरेंट शेड मिलेंगे देखने में इसमें. तो किस तरह के किरदार में नजर आने वाले हैं, मतलब कि नेगेटिव होने वाला है, पॉजिटिव? नेगेटिव. मैं अभी इस शो में 2 ही लड़के हैं यार, मतलब है ना. तीसरा मेरा बेटा बना है, वो थोड़ा सा पागल है. तो इस शो में 2 ही लड़के हैं, एक अजान है और एक असगर है. तो डिफरेंट जॉनर है मेरे लिए. एक चैलेंजिंग रोल है. पहली बात तो ये है कि मैं पहली बार टीवी में अपनी इंटायर लाइफ में एक मुस्लिम शो कर रहा हूँ जिसका नाम है बहू बेगम. सो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. दूसरी चीज़ जो सबसे मैंने अभी तक किसी से शेयर भी नहीं की है, तो ये है कि जो मेरी वाइफ बनी है उनका नाम है सुरैया. तो मेरी रियल मॉम है, उनका नाम भी सुरैया है ना. तो बहुत एक मतलब होता है बॉन्डिंग वाली बात. तो जब मैं बोलता हूँ तो मुझे अपनी माँ याद आती है. अभी समझ नहीं पाता हूँ कि बीवी बोल के उसको बोलूँ या माँ समझ के बोलूँ उसको. तो वो एक चीज़ है. उसका मेरी मॉम का नाम भी सुरैया परवीन है और उनका नाम है सुरैया बेगम. तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना. और मुस्लिम शो है और करने में बड़ा मज़ा आ रहा है कि पहली बार एक मुस्लिम शो कर रहा हूँ. बहुत सारी चीज़ें मुझे एडवांटेज मिल गई हैं कि रिलेशन, इमोशंस, मोहब्बत और मुस्लिम फैमिलीज़ में कैसे कैसे होता है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेट पे ऐसे होती हैं कि यार ऐसे मत, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई ऐसे नहीं होता मुस्लिम फैमिली में. सो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती, कितनी सारी चीज़ें हैं. तो अभी करूँगा तो पता चलेगा. ओके, कई बार एक्टर्स जो है वो झिझकते हैं जब नेगेटिव रोल की बात आती है. तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा था कि नहीं, पहले मुझे लगता था थोड़ा सा ऐसा भी कि यार नेगेटिव तो क्यों करना है. तो फिर मुझे लगा कि अगर आपको अपनी एक अगर आप आर्टिस्ट हो, है ना, अगर आपको एक चीज़ मिलती है करने में जिसमें डिफरेंट शेड हो, जो आपकी एक्टिंग ग्राफ को भी चेंज कर दे, ताकि लोगों को पता चले कि आपके अंदर कितना कुछ है, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है. तो अगर मैं सारी चीज़ें आप देखते हो टीवी में एक ही रोल कर करके लोग कितना हो जाता है, मतलब हीरो के पास कितनी वो होती है, क्या होता है, लिमिट होती है. मतलब लेकिन एक नेगेटिव के पास अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं. हीरो के पास बाउंड्री होती है लेकिन नेगेटिव के पास बाउंड्री नहीं होती. वो धाड़ता 6 मारता, लेकिन पढ़ती भी हैं, नो डाउट, उसकी बात पढ़ती है, लेकिन उससे पहले कितना कुछ करने को मिलता है वो, है ना. तो वो चीज़ है मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थी कि मैं यार कुछ डिफरेंट करूँ. मैंने इससे पहले भी शो किए थे जो जिसमें नेगेटिव किए थे, लेकिन नहीं चले वो. फिर नहीं चला, पर अभी लास्ट मतलब थैंक्स टू गॉड, है ना, कि अभी जो कर रहा हूँ वो नया शो है और मैं इसमें नेगेटिव कर रहा हूँ, डे 1 से करूँगा. सो वो देखते लोगों को कितना अच्छा लगेगा. और मैं बस ये चाहता हूँ कि जब मैं स्क्रीन पे आऊँ, जब मैं कुछ बोलूँ तो लोगों को मज़ा आए, देखने में मज़ा आए,
और लोग बोले भी यार वाकई यार जो कर रहा है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, ताकि लोगों का थॉट बदले। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं टीवी में हैं, सो लोगों को लगे कि यार कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। अब लोगों को पता है कि हम किस एज में हैं, लोगों को पता है कि अगर मैं 60 साल का बनूंगा तो लोगों को पता है कि 60 साल का बना हुआ है। अब लोग स्मार्ट हो गए, अब लोग पहले जैसे नहीं सोचते कि यार किसने माँ का रोल कर लिया तो इसको माँ का ही रोल मिलेगा, ज़रूरी नहीं होता। मैंने तो दादा परदादा का रोल भी कर लिया साथी में यार, है ना। परदादा का रोल करने के बाद फिर मैं दोबारा जग्गी बन के आ गया। मतलब अगर मैं जग्गी बन गया तो उन्होंने बोला कि यार तुम बहुत यंग दिखोगे। अबे अगर मैं किसी का जुड़वा भाई हूँ तो जुड़वा भाई तो एज तो वैसी ही होगी ना, कितना भी यंग हो जाए। तो टीवी में कुछ नहीं ऐसा होता, है ना। बस ये है कि आपको काम मिलना चाहिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो आप कर सकते। ओके, यू नो आपने काम और शो चलने नहीं चलने की बात की है, तो एक शो आपका बहुत टाइम तक चला है जिसने ऑडियंसेस को हमेशा बांध कर रखा था, यू नो। तो अभी लोगों को एक्सपेक्टेशंस आपसे सेम रही है, तो इसके लिए क्या तैयारियां खास की है? मैंने इसके लिए अपने एक लुक बनाया जो आप देख रहे हो, है ना। तो जब मैं स्क्रीन पे आऊँगा तो मेरे एक खड़े होने का स्टाइल होगा, बैठने का होगा, बात करने का एक सलीका होगा, एक तरीका होगा, एक नवाबी आपको लगेगा। अगर नहीं मुझे अगर वो पहले नवाब ही ना दिखे ना तो वो काम करने कुछ मतलब नहीं है। सबसे पहले अगर आप उस किरदार में नहीं बैठते हो तो आप कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो, आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले वो आपको वो किरदार आपको महसूस करना पड़ेगा। तो मैं एज एन अभी जो किरदार करूँगा वो मैं अपने फ्रेंड्स हैं मेरे कुछ जो पठान है ना, तो मैं उनके साथ रहा हूँ। तो उनके जो फादर हैं, तो मैं जब ये चीज़ होगी तो मैं आगे जाके डेफिनेटली बताऊंगा तो मैं किसका किरदार निभा रहा हूँ। मेरे एक बहुत नोन है, जान पहचानने वाले हैं, जिनकी 2 शादी हुई हैं और वो अपनी दोनों बीवियों को कैसे रखते हैं। तो मैं उनको थोड़ा सा करता हूँ कि मैं वो कैसे रहते हैं, लेकिन उनका तरीका क्या है, उनका चलने का, उनका बोलने का। तो कहीं ना कहीं बंदा ये चीज़ें सीखता है। तो मैंने भी सीखी हैं। मैंने कोई किरदार उठाया नहीं है, कोई फिल्म से नहीं उठाया। मैं ये नेचुरल करना चाहता हूँ कि अगर मैं चलूँ तो वो लगे कि बंदा नवाब जा रहा है। लोग अहम को भूल के उड़ान में जो था उसको याद रखे, उड़ान से जो निकला वो समरू में था, समरू को याद रखे, समरू से निकल के अब मैं असगर खान में निकला हूँ, असगर खान बनने में निकला हूँ। तो मुझे लोग अब अहम को छोड़ के असगर खान को याद रखें। तो मेरा ये मानना है कि असगर खान को जितना याद रखेंगे, जितना मुझे लोग बोलेंगे कि यार बहुत गंदा कर रहा है, ये असगर तो बहुत ही वाहियात है, असगर तो बहुत ये है, असगर तो बहुत ही, मैं उतना ही। ओके, सो को-स्टार्स के साथ में कैसा बॉन्ड है इसके बारे में? सबके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। नॉट इवन मेरी को एक्टर के साथ, मेरा जितने भी इंटायर मेरी पूरी टीम है बहू बेगम की, इवन मेरे डायरेक्टर, कैमरामैन, स्पॉट बॉय, जितने भी लोग हैं, मेरा सबके साथ बहुत अच्छा। आप किसी से पता करोगे, किसी से पूछोगे, वो कहेंगे भाई वो ऑफ स्क्रीन अलग है, ऑन स्क्रीन अलग है। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं कि मैं कैसा हूँ, है ना, ऑन स्क्रीन कैसा हूँ, ऑफ स्क्रीन कैसा हूँ। तो मुझे बस ये है कि मैं जब स्क्रीन पे हूँ तो मैं अच्छा लगूँ, जब ऑफ स्क्रीन रहूँ तो मैं अच्छा बन के रहूँ, बस। सो लास्टली जाते जाते बता दीजिए कब से और कहाँ बेगम बहू देखने मिलने वाला? बहू बेगम कहाँ देखने को मिलेगा? ताज में मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा यार, टीवी पे मिलेगा, जिसका नाम है कलर्स, है ना। कलर्स पे आएगा ये 15 जुलाई से, मंडे टू फ्राइडे 9:30, और इसका नाम है बहू बेगम। सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू। जितना आपने मुझे बाकी शोज़ में प्यार दिया, आप इस शो में मुझे उतना ही प्यार दें। मैं अपने फैंस से उतनी दुआ करूंगा कि जितना आपने मुझे पहले प्यार दिया है उतना ही प्यार दें, मेरे शो को प्यार दें, ताकि हमारा शो रनिंग शो बने और एक अच्छा रनिंग शो बन के अच्छा जैसे बाकी शोज़ बने तो ये भी बने। थैंक यू सो मच, लव यू। बहू बेगम के लिए प्रोमो बहुत ही अच्छा प्रोमो है, आप बताइए कैसा लगा इस शो से जुड़ी? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जब पहली बार ही प्रतीक जो इसके प्रोड्यूसर हैं उनसे मिली थी, तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे कहानी समझाई थी और ये कैरेक्टर बताया था, तो मैं उन्हें ना नहीं कह पाई, क्योंकि इतना खूबसूरत है ये कैरेक्टर। और मैं हाँ कह दिया, और मुझे लगता है मैंने अच्छा किया कि हाँ कह दिया, क्योंकि मैं इसकी पार्ट बन गई एंड आई रियली हैड अ गुड टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा यास्मीन प्ले करके। वो किसी का किरदार के बारे में कुछ बताइए, क्या किरदार है, किस तरह के किरदार में अपना जरा? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि माँ का किरदार हमेशा सेम ही होता है, क्योंकि माँ जो होती है वो रिलीजन में बटी नहीं होती। तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, माँ तो माँ है। चाहे उसका नाम यास्मीन हो तो फिर सरला हो या बंगाली लावनी हो, वो रहती है एक ही जैसी है। हाँ, ज़रूर उसके कैरेक्टराइजेशन में हल्का हल्का फ़र्क रहता है। तो जहाँ मैंने पहले जो कैरेक्टर्स किए वो थोड़े हाइपर थे, थोड़े जल्दी बोलते थे। यास्मीन थोड़ी संभली हुई, थोड़ी सबड्यूड है, लेकिन फिर भी उसका प्यार उतना ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ, उसकी झोली अब थोड़ी बड़ी हो गई है, उसने अपनी नूर के साथ साथ अजान और शायरा को भी उसमें संभाल लिया है।
लेकिन वो सिमिलर चीज़ बहू बेगम की भी है। मतलब उन्होंने अगर अजान को इतना प्यार किया तो वो नूर को भी उतना ही प्यार करती है और शायरा को भी बाद में वैसे ही एक्सेप्ट कर लेती है। तो बहुत सारा प्यार है शो में, और जितने भी लोग घात लगा के बैठे हैं जो नेगेटिव्स होते हैं हमारे शोज़ के, तो उनको थोड़ा हार्ड टाइम मिलेगा, बिकॉज इतना प्यार जब होता है और दोस्ती होती है, क्योंकि बहू बेगम और यास्मीन भी बचपन के दोस्त हैं और वैसे ही अजान और नूर हैं, तो कैसे दोस्ती, निकाह और मोहब्बत आपस में कई बार उलझ जाती है, और फिर उसकी उलझन की गांठें दूर करने के लिए किस तरीके से कहानी अपने आप को एक एक पन्ना खोलेगी, वही कहानी है वो। ओके मैम, इसी के साथ में 2 शो मैनेज करना कितना मुश्किल, कितना टफ हो जाता है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं तो मतलब कुमकुम तो अब करती नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा बच्चा हो गया है। अब बड़े बच्चे को माँ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। सिर्फ कभी कभी 6-7 महीने में मैं क्या कहते हैं, प्रज्ञा को कुछ सीन एक करने चली जाती हूँ। सो आई बेसिकली डोंट शूट फॉर कुमकुम। कुंडली अगेन वो 2 साल का बच्चा हो गया, चलना वलना उसको आ गया है, तो मैं उनके साथ 7-8 दिन से ऊपर काम नहीं करती हूँ। तो ये शो जब आया तो मैंने हाँ इसलिए कह दिया क्योंकि आई कैन मैनेज, और टीवी मैं थोड़ा सा कम डेज ही करती हूँ ताकि अपनी फिल्मों पे कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। मेरी 2 फिल्में आ भी रही हैं। हाँ, मैंने इस शो के लिए, मतलब क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टीवी मेरे दिल के बहुत करीब है और टीवी के लिए बहुत प्रोफेशनलिज्म चाहिए। मैंने अपनी एक फ़िल्म भी छोड़ दी आयुष्मान के साथ, बिकॉज हम लोग सेम टाइम पे आउटडोर जा रहे थे। सो इट्स नॉट अ बिग डील, बट टीवी इज़ समथिंग वेरी डियर टू मी। क्योंकि फिल्म का नाम नहीं बताऊंगी, ऑल्दो इट्स अ बिग फिल्म, बट आई डोंट वांट टू टेल। No, Article 15 तो just came. That shoot is still going on. So I did it why? Because कुछ नहीं, आपको टीवी करने से पहले आपको एक्चुअली प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। कि मेरा मानना है, लोगों को लगता है कि टीवी एक अखबार की तरह है जो रोज़ छपता है और फिर कूड़े में जाता है, लेकिन उस अखबार को छापने के लिए जो मेहनत, जो डेडिकेशन और जो आपको एक जज्बा चाहिए ना, वो आप में है, तभी टीवी करिए, नहीं तो मत करिए। बिल्कुल, और उस ऑडियंस तक पहुंचता है जो 500 रुपये की टिकट लेके अपने पूरे परिवार के साथ, मेरा जहां तक कहना है कि 2000 या 3000 खर्च करके सिनेमा हॉल में नहीं जा सकता, उसका एंटरटेनमेंट हम उस टीवी से करते हैं। तभी वो हमको अपना समझते हैं, क्योंकि हम उनके रिमोट पे रहते हैं। तो उनको लगता है कि कई बार ऐसा हुआ है, मैं अभी एक फ़िल्म शूट करने हरिद्वार गई थी अप्रैल में, तो एक लेडी आई और वो उनसे लड़ रही थी, जो लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि हम गंगा हाट पे थे, कि अरे वो सरला है, उसको मैं जानती हूँ उसको। द वे शी वॉज डूइंग इट, आई टोल्ड हिम लेट हर कम। सो शी थिंक, ये समझ ही नहीं रहा था, मैं तो जानती हूँ आपको। तो दे थिंक दे नो मी बिकॉज दे वॉच मी सो क्लोजली इन देयर 21-inch TV. सो आई एम थैंकफुल टू TV फॉर दैट, कि हम उनके दिलों में बसे हुए हैं, वो हमें इतना प्यार करते हैं, और फिर वो सिनेमा पे भी एक्सटेंड होता है। तो और अच्छा इस बार का ये शो खास इसलिए भी है क्योंकि आप बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाले हैं। शो बिल्कुल, पहले कभी हमने आपको ऐसे नहीं देखा है, तो एक्टर को अच्छा लगता है जब थोड़ा सा आपका एक लुक चेंज होता है, बिकॉज आपको भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलता है, तो अच्छा लग रहा है। मतलब कैरेक्टराइजेशन भी थोड़ा अलग है और टेकिंग भी थोड़ी अलग है। मतलब हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रतीक शाह, इज़ ब्यूटीफुल डायरेक्टर टू वर्क विद, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करना। वो छोटे छोटे नुआंसेस पे काम करते हैं, एक लुक पे काम करते हैं, और कई बार आप इमोशनल सीन करते हैं तो वो आपको दूसरी बार नहीं करने देते, वो एक ही बार में वो ले लेते हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ, बिकॉज टीवी में कई बार हमें 2-3 वो करने पड़ते हैं, और वो एक ही बार लेके, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली आई लाइक इट, क्योंकि मैं खुद रोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बार हो जाए, सारी एक मेहनत उसी में चली जाए। ओके मैम, यू नो ऑल्सो आपने क्योंकि पिछले शोज बहुत ही हिट दिए हैं, तो इस बार थोड़ा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है कि मतलब ये शो भी। प्रेशर नहीं लेती, कभी नहीं लेती। मेरा हमेशा मानना है कि अगर आप दिल से काम करते हैं तो वो दिल तक पहुंचता है, और मैं दिल से काम करती हूँ, और पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शायद कोई कमी रहेगी, अगली बार वो पूरी कर लेंगे, लेकिन काम दिल से करना चाहिए। क्योंकि एटलीस्ट आप रात को अपने आप को शीशे में देखकर चैन से सो तो सकते हैं कि मैंने मेहनत करी, ऑडियंस को नहीं पसंद में आया, शायद उनके दिल को नहीं छुआ होगा, अगली बार मेहनत और ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैम, जैसे कि आपने फिल्म कहा कि वो फिल्म कर रही है, तो बताएंगी कौन सी फिल्म? हाँ, एक फिल्म का नाम दूरदर्शन है, वो गगनपुरी हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। उसमें डॉली आलूवालिया जी हैं, और मनु छाबड़िया है, और राजेश शर्मा हैं जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, और मैं और वो हस्बैंड वाइफ बने हैं, और माही गिल है उसमें, और बच्चे हैं, वो बधाइयों वाला बच्चा है। तो वो एक फ़िल्म है, और एक दूसरी फिल्म है जो मैं कर रही हूँ, हमारी, उसका नाम अभी तक रखा नहीं उन्होंने, हमारी भाभी सरिता ऐसा कुछ करके नाम है, जिसमें कि हाँ मुझे पता है वो नाम बड़ा अजीब है, तो लेकिन वो शायद कुछ नाम करेक्ट करेंगे। उसमें मल्लिका शेरावत है, और
रजत जी हैं, रजत कपूर और मैं हस्बैंड वाइफ बने हैं। वो हरिद्वार बेस्ड फिल्म है। सो इट्स अ नाइस फिल्म। वो उसका थोड़ा काम रह गया है अभी, तो वो शायद रिलीज़ होगी। दूरदर्शन आई थिंक इज़ रिलीजिंग सून ओनली। तो थोड़ी वो छोटी वाली फिल्में हैं, जैसे आप बधाइयों को नहीं कह सकते छोटा बिकॉज द डायरेक्टर इज बिग एंड एवरीथिंग, बट उसी जॉनरा को बेसिकली टच करती हुई फिल्में। तो आजकल अच्छा है, सिनेमा इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहा है और हमें मौका मिलता है। So lastly, बहू बेगम के बारे में क्या कहेंगी? कब से देखने मिलने वाला है? बहू बेगम के लिए मैं यही कहूँगी कि थैंक यू ऑडियंस। आपने हमेशा बहुत प्यार दिया है मुझे, मेरे शोज़ को, हमारी पूरी कुमकुम कुंडली फैमिली को। उसी तरीके से इस पूरी मेरी ज़िंदगी की फैमिली में बहू बेगम भी आ रही है, तो बहू बेगम को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। हमने बहुत मेहनत से इस शो को किया है, उतने ही प्यार से आप उसे देख लीजिएगा। 15 जुलाई कलर्स 9:30 मंडे टू फ्राइडे, बहू बेगम। थैंक यू सो मच। ओके, सो काफ़ी लंबे समय बाद कमबैक कर रही है टेलीविजन पे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ज़रूर कुछ ना कुछ खास बात तो होगी इस शो में, जो इतने टाइम बाद कमबैक करने का सोचा, तो इस शो से सोचा, तो वो खास बात क्या? बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे इसके लिए ऑडिशन देना पड़ा था। एंड जब मैंने ऑडिशन दिया और मैं जब सिलेक्ट हुई तो मैंने इसका स्क्रिप्ट सुना एंड आई हर्ड अबाउट द कैरेक्टर। आई मीन आई रियली लाइक्ड इट, और मुझे हमेशा से ऐसा कुछ करना था एंड मुझे वो मिल गया। एंड बिकॉज शायरा इज़ अ वेरी शी इज़ वेरी सिंपल सॉर्टेड एंड शी कीप्स हर रिलेशनशिप टॉप पे, तो ये सब बहुत अच्छा एलिमेंट्स है। एंड आई लव द होल कास्ट एंड the story. I can't reveal much, but you guys will come to know soon. इसी के साथ अगर किरदार की बात करें तो क्या मतलब रेफरेंस लिया आपने इस कैरेक्टर को, इस किरदार को प्ले करने के लिए, अगर आप बात करें? As an actor. कुछ नहीं, मुझे उर्दू सीखनी पड़ी थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरी हिंदी भी ऐसी है। आई वोंट लाई, आई एम वर्किंग ऑन इट। एंड प्लस शायरा का रहन सहन जो है, जैसे वो बात करती है, जैसे वो एक सिचुएशन हैंडल करती है, तो ये सब थोड़ा आई नीड टू लर्न एंड आई एम लर्निंग। एंड बस चल रहा है। ओके, इसके साथ एक अलग से जिस तरीके से आपने बताया कि मतलब काफ़ी आप इस किरदार की आप तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी पहनावा भी अलग है, कैरेक्टर भी अलग है, सेट भी अलग है, उसके बारे में भी बताइए कैसा एक्सपीरियंस? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि सबको ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। एंड जो कपड़े हम पहन रहे हैं, इट इज़ हैवी एंड समटाइम्स आई रियली गेट इरिटेटेड, बट हम ही दिख रहे हैं और मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, मुझे इतना पॉजिटिव रिव्यू आया है। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ एवरीथिंग दैट आई एम गेटिंग हियर। ओके, और बात करें अगर शो के एक्सपीरियंस की, अभी तक जितना भी शूट हुआ है, कितना एंजॉय किया शूट करना? एंड मैं तो बहुत ज़्यादा ही फूड इंसान हूँ। when we were shooting in बीकानेर, तो वहाँ पे सब बोल रहे थे डाइट करो, बट कुछ नहीं, हम सिर्फ बिरयानी और लाल मांस खा रहे थे। एंड बहुत मज़ा आया। बीकानेर वॉज वेरी हॉट, बट हम सब ऐसे पंखे में ऐसे करके वी वर एन्जॉइंग, इट वॉज फन। शो की सबसे खास बात क्या लगी? शो की सबसे खास बात है उसका कॉन्सेप्ट। इट्स नॉट वैसे कि अरे मतलब जो दो निकाह वाला है, वैसा कुछ नहीं है कि मर्द अपनी मर्जी से कर रहा है। ऐसा कुछ सिचुएशंस की वजह से आई एम लाइक हम लोग सब हैंडल कर रहे हैं एंड यू गाइस विल गेट टू नो, बट इट्स रियली नाइस। आई नो, फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू। लास्टली क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना कहूँगी, प्लीज़ गाइस डू वॉच बहू बेगम ऑन कलर्स 15 जुलाई से 9:30 PM, सॉरी नॉट AM, एंड ऑल्सो ऑन वूड। थैंक यू। ओके, सबसे पहले तो नया शो है, इसकी बहुत मुबारकबाद आपको। कुछ बताइए इसके बारे में, किस तरह का शो होने वाला है बहू बेगम? बहू बेगम इज़ सेट इन अ वेरी नवाबी बैकग्राउंड। प्यार और दोस्ती में कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है, एंड दैट इज़ द सेंट्रल प्रेमिस। मैं रज़िया का किरदार निभा रही हूँ। शी इज़ द बहू बेगम ऑफ भोपाल, एंड शी इज़ फ्रॉम अ नवाबी बैकग्राउंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, वेरी प्रोग्रेसिव माइंडसेट। लेकिन लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं जिस वजह से जो भी वैल्यूज़ आर डियर टू हर वो बिखर जाते हैं, और लाइफ किस तरह से रीबिल्ड करनी पड़ती है। ओके, इसी के साथ की अगर बात करिए तो रज़िया के किरदार की जिस तरीके से आपने बात कही है, तो मतलब किस तरीके का किरदार होने वाला है एंड किस तरीके के किरदार में आप नज़र आने वाली हैं अबाउट द रज़िया? हाँ, रज़िया के बारे में तो बता दिया मैंने मतलब आपको। कैसे किस तरीके से ग्रोथ होगा कैरेक्टर का इस शो में, ये बताइए।
As I said, she is a very progressive-minded person, with very deep belief in equality for women and forward-thinking person. लेकिन लाइफ में कई हादसे होते हैं जिस वजह से लाइफ उनकी बिखर जाती है एंड फिर लाइफ को रीबिल्ड करने में क्या चेंजेस आते हैं उनके कैरेक्टर में, उनकी आउटलुक में. दैट इज़ हर कैरेक्टर ग्राफ. आपका एक शो था जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया था, तो उसकी याद कहीं ना कहीं आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा आ रही ही ना. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कितने मेमोरीज रिकलेक्ट की जब ये शूट कर रही थी? तो नॉट सो मच मेमोरीज बट डेफिनेटली मैंने शो को हाँ कहने के बाद मुझे ध्यान में आया that there are similarities, and that is also something of great interest to me. At 2 points in a woman's life, दो अलग stages of a woman's life में similar circumstances. So that is interesting for me to play. Yeah. Also, प्रतीक जी ने कहा कि आपने सिर्फ 3 मिनट में शायद से ये किरदार के लिए. I think प्रतीक ने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है टाइम को. इस हिसाब से 3 मिनट तो नहीं लगे थे, काफ़ी समय लगा था. बट प्रतीक बहुत ही स्वीट है. इस तरह से उन्होंने परसुएड किया टू प्ले दिस कैरेक्टर. या तो सबसे ज़्यादा क्या किस बात ने अट्रैक्ट किया शो की अगर बात करें? As I said, the storyline is really powerful. मुझे काफ़ी लोगों ने यहाँ कहा है कि दिस काइंड ऑफ स्टोरी टेलीविज़न में पहले शायद देखने को नहीं मिला है. एंड रज़ियाज़ कैरेक्टर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर अ कैरेक्टर ग्राफ. या और कितना रिलेट कर पाई अपने कैरेक्टर को? None of the characters that I play are like me, but I think as an actor you have to find something in yourself that resonates with the part that you're playing. ये ज़रूरी होता है to make it real for yourself, to make it convincing for yourself and to be able to play it convincingly. वो किस तरह से relate करना है वो अपने आप में ढूंढना पड़ता है. And yeah. टेलीविज़न में आने में थोड़ा सा वक्त लगा दिया वापस, क्या वजह रही? ये सब मुझसे पूछते हैं. मैं प्रोजेक्ट्स के बीच में गैप तो होता है बट वापस आना, कहीं जाना, आई कांट डू प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक. दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं, नॉट टेलीविज़न, देयर इज़ फिल्म्स, देयर इज़ वेब सीरीज़, तो गैप आ जाता है. इट्स नॉट समथिंग बाय डिज़ाइन. या इसी के साथ में बहुत सारे किरदार आपने प्ले करे हैं, चाहे वो फिल्म्स में हो या टीवी पे हो. ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके सबसे ज़्यादा आपके दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, करीब? I enjoy the work that I do, but I don't become terribly attached to them at all. Yeah. ओके, इसके साथ ही बाकी को स्टार्स के साथ में कैसा अनुभव रहा काम करने का आपका? बहुत ही अच्छा. आई रियली गेटिंग टू नो सबको मैं पहली बार मिली हूँ एंड आई हैव नेवर सीन एनी ऑफ देयर वर्क बिफोर, बट आई रियली एन्जॉयड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो देम. दे आर लवली पीपल, ग्रेट फन, लवली एनर्जी ऑन सेट. बहुत मस्ती करते हैं, नॉन स्टॉप बातें होती है. इट्स रियली एन्जॉयबल. अभी तक सबसे ज़्यादा मतलब दोस्ती सबसे ज़्यादा अच्छी किसके साथ में हो गई है? ये तीनों की दोस्ती तो अलग जगह है एंड आई एन्जॉय एवरीवन्स कंपनी ऑन सेट. ओके, लास्टली एक मज़ेदार किस्सा बताना चाहेंगे आप सेट पर का? मज़ेदार किस्सा, राजस्थान के भूत बंगलों की कहानियाँ सुनी हैं आपने? सबसे पूछिए क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं सबके साथ. वो मज़ेदार नहीं है, वो काफ़ी हॉरिफाइंग है. हम लोग ने बिरयानी वाली कहानी सुनी है. कौन सी बिरयानी वाली कहानी? उन्होंने बोला कि मतलब बीकानेर में कुछ बिरयानी उन्होंने खाई है. डायना नींद में उठकर कहने लगे मुझे बिरयानी चाहिए. हाँ, वो दोनों दे वर शेयरिंग अ रूम, मतलब एक दूसरे के रूम में रहती थी डर के मारे. या दे हैव दैट बिरयानी स्टोरी. आई फॉरगॉट अबाउट दैट. बताने वाली थी मैम, वो राजस्थान वाली स्टोरी कौन सी थी जिससे आप डर गई थी कि कोई और डर गया था? सबसे पूछिए क्या क्या इवेंट्स हुए हैं सबके साथ. सबको लगता था. राजस्थान में तो डेफिनेटली हवेलियों में हर एक ऐसी कोई हवेली नहीं है जिसमें कोई हॉन्टिंग की कहानी ना हो. तो सब
रात में ऐसे जागते थे। ओके, इसके साथ ही मैम अपने लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यू नो बहुत ही ट्रेडिशनल लुक रखा गया है आपका इस शो के लिए, नवाबी स्टाइल। आपको वक्त लगा इस कैरेक्टर को कैच करने में, या फिर यू नो कुछ पहले से प्रैक्टिस की थी इस लैंग्वेज को, जो नवाबी लैंग्वेज होता है उसको उसके लिए प्रिपेयर करने में? पहले से तो नहीं, बट डेफिनेटली वंस यू टेक ऑन अ पार्ट टू प्ले, उसमें एफर्ट तो करना पड़ता है, यू नो, खासकर टू बी ट्रू टू द कैरेक्टर, टू बी ट्रू टू द बैकग्राउंड दैट शी कम्स फ्रॉम। डेफिनेटली वन हैज़ टू बी माइंडफुल, यू नो, सोच डालनी पड़ती है उसमें, आइडियाज़ अपने लाने पड़ते हैं। डेफिनेटली यहाँ लुक के बारे में they've given her a very regal look, traditional jewelry which I'm happy about. Heavy हो जाती है at the end of the day, but you know, this is they wanted a very regal look for her. Yeah. Okay, so lastly मैम कब और कहाँ देखने मिलने वाला है? 15th July 9:30 p.m. on Colors. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yeah.